Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागेरलोफ। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself on the floor, and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आयरन मास्टर पेडलर को इनवाइट करते हैं अपने घर पर, लेकिन पेडलर बार बार मना करता है उनको। तो फिर आयरन मास्टर वहां से चले जाते हैं। तो फिर उनके जाने के कुछ आधे घंटे बाद आयरन मास्टर की बेटी हॉर्स कार्ट में बैठ के वहां पर आती है फॉर्ज में, क्योंकि आयरन मास्टर को ये लगता था कि उनकी जो बेटी है वो उसमें उसमें बेटर परसुएशन की क्वालिटीज है, यानी कि वो लोगों को अच्छे से मना सकती है। और उनके साथ एक वैले यानी कि एक सर्वेंट भी होता है, और उसके हाथ में एक बड़ा फर का कोट होता है। ऑथर कहते हैं कि आयरन मास्टर की बेटी ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मॉडेस्ट यानी जेनरस और हम्बल थी नेचर वाइज, और वो थोड़ी सी शाय भी थी। जब वो फॉर्ज में आती हैं तो फॉर्ज में सब कुछ पहले जैसा चल रहा होता है, यानी कि आयरन और चारकोल जो थे वो फर्नेस में मेल्ट हो रहे थे, और ब्लैकस्मिथ और उसका असिस्टेंट बेंच पे बैठे हुए थे, और पेडलर सोया हुआ था अपनी हैट को अपने फेस के ऊपर रख कर। फिर जैसे ही वो लड़की पेडलर को देखती है तो वो सीधा ऊपर जाती है पेडलर के पास और उसकी हैट को हटाती है। उस लड़की को देख के जो पेडलर होता है वो एकदम से उठ जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something, or else he has escaped from the jail, she thought, and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो फिर वो जो लड़की होती है वो पेडलर से कहती है, और वो पेडलर को अपना नाम बताती है कि उसका नाम एडला विलमैनसन है और वो आयरन मास्टर की बेटी है। और उसने पेडलर को कहा कि उसके फादर यानी कि आयरन मास्टर चाहते हैं कि वो उसके साथ उसके घर चले। और फिर पेडलर को इस कंडीशन में देखकर वो जो एडला होती है वो सॉरी फील करती है, और ये कहते हुए एडला उस पेडलर को कंपैशनेटली देख रही थी। और फिर उसने नोटिस किया कि जो पेडलर था वो डरा हुआ था, यानी कि वो अफ्रेड था। तो एडलर को लगता है कि वो पेडलर जो है उसने जरूर या तो कोई चोरी की है या तो वो कोई चोरी करके भागा है,
या फिर वो जेल से एस्केप करके भागा है। तो इसीलिए वो पेडलर से कहती है कि तुम जैसे फ्रीली यहाँ पर आए थे, बिल्कुल वैसे ही फ्रीली तुम हमारे घर से भी जा पाओगे, और बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करो। तो वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him, with a deep bow, threw over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. तो एडला ने पेडलर को इतने ज्यादा फ्रेंडली वे में, यानी कि इतने अच्छे से और पोलाइटली उस पेडलर को वो सब बातें कही और पेडलर को मनाया कि पेडलर को उसकी बातों में कॉन्फिडेंस यानी कि सच्चाई लगी। तो पेडलर ने आगे से कहा कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक लड़की, एक मिस्ट्रेस, कभी उसके साथ बात भी करेगी। फिर वो पेडलर एडला के साथ आयरन मास्टर के घर जाने के लिए मान जाता है और वो उस फर कोट को भी एक्सेप्ट कर लेता है और एडला के साथ कैरेज की तरफ चला जाता है बिना ब्लैकस्मिथ को ग्रांट करे। लेकिन फिर जब वो उस मेनर के घर जा रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा बुरे थॉट्स आते हैं। वो सोचता है कि आखिर क्यों उसने वो पैसे को चुराया उस ओल्ड मैन के घर से, और अब वो भी एक ट्रैप में फंस गया है और उससे शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सब बुरे बुरे ख्याल उसे आ रहे थे। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. तो फिर क्या होता है कि फिर अगले दिन क्रिसमस ईव होती है और जो आयरन मास्टर है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे आते हैं। तो वो सोच रहे होते हैं कि कैसे, कितना अनएक्सपेक्टेड था ये, कितने अनएक्सपेक्टेडली वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो कैसे अपने एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड से मिल गए। फिर वो अपनी बेटी को कहते हैं टू मेक श्योर कि पेडलर हैज सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी कि उन्हें अच्छे से फूड सर्व करो। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो पेडलर फिर से रैट ट्रैप्स ना बेचे और उसके पास कोई अच्छा काम हो करने के लिए, ये इसका ख्याल भी उन्हें रखना पड़ेगा। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो फिर यहाँ पे ये होता है कि एडला पेडलर के लिए बुरा फील करते हुए आयरन मास्टर से कहती है
कि कितना बुरा हुआ उस पेडलर के साथ, कितना बुरा हुआ उसकी लाइफ में और उसके साथ में। तो वो ये भी कहती है कि लास्ट नाइट पेडलर को देखकर एडला को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो जो पेडलर है वो कभी एक एजुकेटेड इंसान भी था। तो इसके रिप्लाई में आगे से आयरन मास्टर एडला को पेशेंस रखने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि जब वो पेडलर को साफ सुथरा देखेंगे और तैयार हुआ हुआ देखेंगे तब वो कुछ और ही लगेगा। रात को तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरस था अपने रैग्ड क्लोथ्स की वजह से, और ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ साथ उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं वो भी उतर जाएंगे। तो फिर आयरन मास्टर के ये कहते ही उस रूम में पेडलर एंटर करता है और वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा और ग्रूम्ड दिख रहा होता है और उसने आयरन मास्टर का सूट भी पहना हुआ होता है और उसने एक वाइट शर्ट, एक स्टार्च्ड कॉलर और शूज पहन रखे होते हैं। But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. तो फिर क्या होता है कि जब वो पेडलर ग्रूम होके आयरन मास्टर के सामने आता है तो आयरन मास्टर कुछ प्लीज्ड नहीं लगता, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में लगते हैं और वो कुछ सेटिस्फाइड से नहीं लगते। तो वो उसकी तरफ प्लकर्ड ब्रो से देखते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि वो एक एंग्री एक्सप्रेशन से उस पेडलर को देखते हैं और उन्हें ये समझ आ जाता है कि रात को बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो उस टाइम फर्नेस की रिफ्लेक्शन की वजह से आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंजर को गलत समझ लिया। पर अब डेलाइट की रोशनी में जब वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा दिख रहा है तब वो देख सकते हैं कि ये कोई उनका पुराना अक्वेंटेंस नहीं है, ये कोई उनका पुराना साथी नहीं है। और वो ये चीज देख के एकदम से जोर से चिल्लाते हैं कि इसका क्या मतलब है। और तभी वो स्ट्रेंजर को कुछ भी छुपाने, जो स्ट्रेंजर होता है वो तब कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता और वो ये चीज समझ जाता है कि उसका जो अभी तक का स्प्लेंडर चल रहा था, यानी कि जो उसका ग्रैंड ट्रीटमेंट हो रहा था, जो अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था उसके साथ, जो उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो अब सब कुछ एंड पे आ गया है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो वो जो पेडलर होता है वो कहता है कि उसकी इस सब में कोई भी गलती नहीं है। उसने कभी आयरन मास्टर का पुराना अक्वेंटेंस बनने का कभी प्रिटेंड ही नहीं किया। वो तो सिर्फ एक पुअर ट्रेडर है। उसने तो कभी प्रिटेंड ही नहीं किया कि वो आयरन मास्टर का एक पुराना अक्वेंटेंस है। और उसने सिर्फ बेग करके मिल में रुकने के लिए परमिशन मांगी थी ताकि वो वहां पर सो सके। तो फिर वो आगे से कहता है और ऐड करते हुए कि अभी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मैं अभी भी अपने जो पुराने रैग्ड कपड़े हैं वो पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, तो अभी भी कोई बुराई नहीं है इस चीज में। तो फिर आयरन मास्टर जो है वो आगे से कहते हैं कि तुमने भी तो इतना कोई सच नहीं बोला है और तुम उसी टाइम एडमिट कर सकते थे कि तुम कैप्टन नहीं हो। और वो कहते हैं कि वो वहां के शेरिफ यानी कि पुलिस को भी बुलाएंगे और वो ही इस मैटर में अब तुमसे बात करेंगे। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap.
All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो जो पेडलर होता है वो आगे से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि चीजें एक्चुअल में कैसे चलती हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है और इसमें जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो और कुछ नहीं है पर एक बेट की तरह होती हैं और ये चीजें हम जैसे लोगों को परेशानी में लाने के लिए लगाई हुई होती हैं। और अगर शेरिफ यहाँ पर आते हैं और जो पेडलर है उसे लॉकअप में डाल देते हैं तो याद रखना आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम भी किसी बड़े से पीस ऑफ पोर्क में आकर फंस जाओगे और फिर तुम भी उस टाइम ट्रैप में फंस जाओगे।